प्रभु की स्तुति हो। Really, it's a great joy to be among all of you. आपके बीच में रहने का एक बहुत ही असाधारण ऐसा आनंद है। Yes, as Pastor Sue has said, we were neighbors, just next door. पास्टर सुहास ने बोला था कि इनके बाजू में रहते थे। And what I have seen, how Pastor Suha started everything in prayer, early morning till late night, we listen the prayers. और इन्होंने किस तरह प्रातः और रात में प्रार्थना करके इस कलीसिया को संस्थापित किया। In those time he was working outside, so with the bike here and there whole day long, but he have time to spend with the Lord also. और हालांकि उस समय कहीं काम करते थे, बाइक पे इधर जाते थे, काम करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस कार्य के लिए समय देते थे। And always Kavita sister there supporting, and encouraging, pray. और बहन कविता ने उनको बगैर कुछ कहे हुए हमेशा उनको मदद और सहायता की है। Abhishek, very small boy in those times. अभिषेक उस समय बहुत छोटा बच्चा था। That was in 2005. 2005 की बात है। So now, you can see that Abhishek. और अब हम उसको बच्चा नहीं देख सकते। So I praise God. I want to pray. और हमें इनके लिए प्रार्थना करना है। Yes, Father, we want to thank you and worship you. You have been speaking from the very beginning to us in this service. And we worship you. We humble ourselves to you. And keep speaking, O Lord. Keep speaking, and we want to listen and obey. Take your place, O Lord, in our body, in our soul, in our spirit. In Jesus' name. Amen. Really, I have been listening. God was speaking from the worship time, testimonies, the word of God through all of you. और आप लोगों से शुरुआत से हमें सुनते आए हैं आराधना के शब्द, गीत, जो भी कुछ सारा था। What God placed in my heart to share with you is all about what He already have been speaking this morning. आज जो सवेरे आपने सुना वही जो है परमेश्वर इनके साथ बताने के लिए बात कर रहा है। And I gave a name to be with Him. और उनके साथ रहने के लिए एक नाम मैंने चुना। Means relationship with Him. मेरा उनके साथ रिश्ता। You know, just we are starting this year, just few weeks. और कुछ सप्ताह हुए कि हम ये साल को शुरुआत कर चुके हैं। So really this is the time, that we can consecrate ourselves, that we can say again to Lord, yes Father, yes Jesus, yes Holy Spirit, what I want to is to be with you this year. ये समय आया है कि हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे और कहें कि परमेश्वर ये आपका क्या कार्य है कि आपके साथ हमें रहना है। You know, can we go please to the book of Mark, chapter 3, verse 12? क्या हम मरकुस सुसमाचार 3 अध्याय 12 पद की ओर जा सकते हैं? 3:12, मरकुस 3:12। and we will read that verse, please. इंग्लिश में कोई पढ़े? 12, 13, and 14. 12 से 14 पद, 3 अध्याय 12 से 14 पद। And he straightly charged them that they should not make him known. And he goeth up into a mountain and calleth unto him whom he would, and they came unto him, and ordained 12 that they should be with him, and that he might send them forth to preach. Jesus was calling to the 12 closest disciples, and he was calling them. The call was to spend time with him. यीशु मसीह ने उनके जो चेले थे, प्यारे चेले थे, उन्हें बुलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें बुलाया लिया कि वो उनके साथ समय बिता सके। As we are starting this year, God is telling, I'm inviting you to spend time with me. और जैसे साल हम शुरू कर रहे हैं, जैसा
दास ने कहा कि मैं आपको बुला रहा हूं परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए। We have many roles and work and many plans for this year. हमारे जीवन में बहुत सकता है, बहुत सारी योजनाएं होगी, बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारा कुछ होगा। That really many times we are so distracted, so confused because the many things we have to do. और कई बार हम ऐसे डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं कि हम कहाँ जाए, क्या करें। But you know, everything will come to the right place if we are in right fellowship with Him. और सारी चीजें सही जगह पर आएगी जब हम उसके साथ सही सहभागिता में रहेंगे। He chose those 12 to spend time with Him. He chose you and me to spend time with Him. उसने जिस तरह चेलों को अपने साथ समय बिताने के लिए बता, इस तरह उसने आज हमें भी उसके साथ समय बिताना है। When they spent time with Him, what they did was also to share everything Jesus was speaking to them. और जो उन्होंने समय उसके साथ बिताया, यीशु मसीह ने जो भी कुछ देखा वो उन्होंने सारा कुछ साझा किया। You know, once someone came to Jesus and said, "No, what I have to do to inherit the kingdom of God?" और एक बार एक व्यक्ति प्रभु के पास आया, उसने कहा कि परमेश्वर का राज्य प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। And what Jesus answered? यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? Yeah, but the first He is telling, no, you know the commandments, no, those things that we have there in English and also there is Hindi. यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, हालांकि 10 आज्ञाएं इंग्लिश और हिंदी में हैं। And this guy, no, he said, "Oh, I have done everything of that. I fulfill." और उन्हें बताया गया तो उसने कहा मैं तो सारा कुछ जानता हूँ और उनके अनुसार चलता भी हूँ। But yes, as sister said, Jesus said to him, "Sell everything you have and give away." So he went to the very deep point. His heart was in the material richness. और उसे जब वो कहा गया तो वो बहुत दुखी हुआ क्योंकि वो संसार चीजों से बहुत सारा आशीषित था। But you know, always the invitation will be to be with Him. और हमेशा उसके साथ आने के लिए आपको इनविटेशन होगा। We will see later how we can fulfill this commandment. और इन आज्ञाओं के साथ हम किस तरह हम इसको समझ नहीं पाते कई बार, वो हम आगे देखेंगे। But I want you to ask yourself and myself, I have been asking. और हम अपने आप को और दूसरे के बारे में इस बात को पूछें, Are we in right relationship of love with God? क्या हम यीशु मसीह के साथ परमेश्वर के प्रेम में हैं? Are we really hungry and thirsty of Him? क्या हम उसके लिए भूखे और प्यासे हैं? Can we go to the book of Psalms 42? और क्या हम भजन संहिता 42 की ओर जा सकते हैं? And we will read from 1 to 4. 1 से 4 भजन संहिता 44 verse 1 to 4. भजन संहिता 44 1 से 4 पद हम पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना है, हम अपने पूर्वजों ने हमें बताया है, तूने उनके समय में प्राचीन काल में अनेक अद्भुत कार्य किए हैं। तूने अन्य धर्मी राष्ट्रों को अपने हाथ से उखाड़ा, पर हमारे पूर्वजों को स्थापित किया था। तूने अन्य जातियों को विध्वस्त किया, लेकिन हमारी जाति को विकसित किया है। हमारे पूर्वजों ने तलवार से धरती पर अधिकार नहीं किया था और न अपने भुजबल से विजय प्राप्त की थी, वरन तेरे दाहिने हाथ ने, तेरी भुजा ने, तेरे मुख ज्योति से, क्योंकि तू उनसे प्रसन्न था। How beautifully is here speaking about that desire to have that relationship with Him. और यहाँ पर कितना उत्तम रीति से बता रहा है कि वो अद्भुत उसकी इच्छा है कि उसके साथ संगति हो। He's talking, no, as the deer longs for the stream water, so I long for you, Lord. और जिस तरह उस उत्तम पानी के लिए जिसे हम रुकते हैं, उस तरह वो भी वही कहता है। Are we with that hunger? I long to be with God. क्या आप वो आपको भूख है कि प्रभु के साथ रहने की वो भूख आपके पास है? When we open our eyes, are we longing to spend time to speak with Him?
कि हम अपनी आंखों को खोले और खोलते हैं तो उसके साथ समय बिताने के लिए हम बहुत आतुर है। During the day, when I'm doing my work, my things, I'm longing to share with him, to speak, to worship during the day. क्या हुआ है, अच्छा है कि जितना भी समय मुझे मिले मैं वो उसके साथ आराधना में सहभागिता में बिताने की मेरी इच्छा है। Because that is the desire of God, that every day we will be longing and whole day longing him. और यही परमेश्वर की इच्छा है कि पूरे दिन भर जितना भी समय आप उनके साथ बिताओ, यही उनकी इच्छा है। Can we just pray, everyone now in our own seat, they said, oh God, I want to be like this psalm is speaking, that I want to be longing for you, for your love. और हम इस प्रार्थना में रहे कि परमेश्वर हम सिर्फ बैठे हुए नहीं, लेकिन जहाँ भी है हम आपके लिए आतुर है मिलने के लिए और हम आपकी सहभागिता में रहना चाहते हैं। Can we pray, everyone in their own, let's have that desire. क्या हम अपने आप में अंदर से ये आशा रखते हैं कि हम उसके साथ वो प्रार्थना करें? Yes, Lord, we pray, we ask, Lord, for this desire, as this psalm is speaking, to long for you. कि हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर तेरे साथ सहभागिता रहने के लिए हम आतुर है, हम इच्छा है हमारी कि हम आपके साथ रहें, हम उसकी आशा करते, इच्छा करते परमेश्वर। May my body, may my soul and my spirit long for you whole day long. कि हम कहें कि परमेश्वर पूरा दिन मेरी आत्मा, मेरा प्राण आपके साथ सहभागिता प्रार्थना करने के लिए तड़पता है। In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम में, by the power of your Holy Spirit, तेरे उस पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा I want to have this desire and power to seek you. वो मुझे शक्ति और इच्छा हो कि मैं आपको ढूंढ सकूं। Amen. आमीन। And you know, when we are with this longing, with this desire to seek Him, so we will have to spend time to listen. और अगर इस तरह की हमारी उत्कट इच्छा है कि हम उसे ढूंढ सके तो ये हमें करना है। God is speaking all the time. और यही वो नित्य कह रहा है। God speaks through His word. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बात करता है। Holy Spirit will speak with us when we are praying or worshiping Him. जब हम उसकी आराधना करते हैं तो पवित्र आत्मा उसके द्वारा बात करता है। God speaks through our leaders, mentors. परमेश्वर हमारे जो लोग हमें अगुवाई करते हैं, अगुओं के द्वारा बातें करता है। God speaks through the circumstance. और परमेश्वर उनकी परिस्थितियों से भी द्वारा भी उनसे बातें करता है। God speaks in dreams and visions. और उस दृष्टांतों में, सपनों में भी परमेश्वर बातें करता है। He has many ways to speak. और हमारे साथ बात करने के उसके अनेक मार्ग हैं। Are we listening? क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं? If we said, I can't listen, God, so let's pray. Oh God, make sensitive my spiritual ears and eyes to hear, to see from you. और अगर आप उसे सुन नहीं पा रहे तो आप प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मेरे आत्मिक कान और मेरे आत्मिक जो आंखें उन्हें आप तैयार कीजिए कि मैं आपको देख सकूं, आपको सुन सकूं। Jesus said, I'm doing everything my Father is telling me to do. और वो कह रहा है कि मैं मेरे पिता से कह चुका हूं कि जो मैं कर सकता हूं सारा कुछ करूं। He said, I'm doing everything He's telling me to do. और वो कहता है कि जो भी कुछ कर रहा हूं वो मुझे कहता है वो। But many times, I have found myself doing things that I want to do, and God didn't speak. और जो परमेश्वर ने नहीं कहा वो सारी चीजें जो मुझे अच्छी लगती है वो मैं करने की प्रतीक्षा करता हूँ। So it's the time to come back to Him and to be in right relationship with Him, to ask, forgive me, Lord, that I did in my way, that I did in my time. और कहता है कि वो जो हमें वो कहना है कि परमेश्वर मुझे वो सही कार्य करना है जो सही समय पर करना जरूरी था। He has His way. उसके अपने मार्ग हैं। We were in the mountains and we opened a training center to serve the community there. वहाँ पर जो है उनके जो अगुवे हैं या वहाँ पर जो सेंटर है उनको चलाने की जिम्मेदारी उनके पास है। We were teaching computer, baking,
English, Spanish with another member's team. और उस जिम्मेदारी के दौरान वहां पर जो है कंप्यूटर्स का कार्य, बेकिंग का कार्य, ऐसे बहुत सारे कार्य वो सिखाते थे. But you know what happened? That when COVID time came, we couldn't keep open the training center. So we have to close and we were going to the houses. और जैसे कोविड का समय आया, ये सारे सेंटर्स उन्हें बंद करने पड़े और फिर वो जो है मिलना बंद हो गया, तो वो उनके घर घर जाकर वो कार्य शुरू करते थे. To teach them in their homes. उनके घरों में सिखाने का कार्य शुरू रखा. But the people were asking, give us job, we need job. लेकिन लोगों को जो है उनको नौकरी की जरूरत. And there God placed in my husband's heart to open a bakery and coffee place. और इनके पति को जो है परमेश्वर ने वो मन दिया कि वो बेकरी और कॉफी के लिए एक जगह बनाए. That was one of the way to work during COVID time, to sell some food, isn't it? और लोगों और कुछ जो खाना है बेचने के लिए परमेश्वर ने एक योग्य मार्ग उसके द्वारा दिखाया. At the beginning, I was not too much convinced. I was thinking, no, that is too much work to be in the kitchen. I don't want that. I want to do another way. और शुरू में बहन कहती थी कि ये मार्ग मुझे सहमत नहीं है, मुझे कुछ और मार्ग ढूंढना है कार्य करने के लिए. I really seek God, but I couldn't hear. और वो जो थे उन बातों से अनारोग्य स्थिति में थे कि किस तरह से कार्य किया जाए. But you know, God spoke very softly but strong. Sorry. God spoke to me very softly but strong through His word. लेकिन परमेश्वर ने बहुत शांति से लेकिन बहुत कठोरता से ऐसा उनके साथ बात किया. As a wife, you have to help your husband, submit to him. और परमेश्वर ने कहा कि आपको आपके पति को मदद करनी है. So I said, oh God, yes, I will help my husband in this desire you place in his heart to open a bakery and coffee place. और इन्होंने कहा कि हाँ मैं परमेश्वर मैं मेरे पति को सहायता करूंगी और फिर उनकी इच्छा थी कि वो बेकरी और कॉफी शॉप शुरू करें. So I obeyed God and I submit to my husband. और इन्होंने जो है परमेश्वर के अनुमति के अनुसार परमेश्वर का आज्ञा पालन किया वहां पर. And God blessed us so beautifully. और परमेश्वर ने बहुत आश्चर्यकारक से आशीषित किया. People, no believers got job through that bakery. और विश्वासी लोगों को वहां पर जो है उस बेकरी के द्वारा नौकरियां मिली. And many people got to know the Lord because that is a chance that we can have to share with people about His love. और वो जो जगह थी जहाँ प्रभु का प्रेम जो है वो लोगों को बताने की वो जगह मिली और बहुत लोगों को परमेश्वर के बारे में ज्ञान मिला. Much more than I was imagining and praying for. और आप इसका अंदाजा नहीं ले सकते हम किस तरह प्रार्थना कर रहे थे. I was praying just for my village, for my city there in the mountains. और वो वहाँ प्रार्थना करते कि मेरे शहर के लिए, इस पर्वतों के लिए आप प्रार्थना लगातार में थे. But to that small bakery and coffee place, God has brought many people from all around India. और उस बेकरी में, उस कॉफी शॉप में यहाँ तक कि भारत से भी लोग को परमेश्वर ने वहाँ पर खींच लिया. Around 40 countries, people from 40 countries have come to that bakery. और उस बेकरी को परमेश्वर ने कम से कम 40 देशों के लोगों को लेकर आया. Glory to God. Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो. When we decide to obey God, even though we are sometimes not sure, कई बार परमेश्वर की स्तुति हो कि कई बार ऐसी परिस्थिति आई, but when we give one step in obedience, He will guide us for the next step. लेकिन हम परमेश्वर में जब एक कदम आगे रखते हैं तो आने वाले सारे कदमों को परमेश्वर मदद करता है. We didn't have at the beginning even money to pay the rent for that bakery. उस बेकरी का भाड़ा देने के लिए शुरू में इनके पास पैसे भी नहीं थे. No money to pay for the people who want to work. जहाँ काम कर रहे हैं नौकरों के लिए देने के लिए तनख्वाह नहीं थी. But God provides everything. लेकिन परमेश्वर ने सारा कुछ प्रबंध कर दिया. Not just the material, सिर्फ संसार संबंधी चीजें नहीं, but spiritually. लेकिन जो भी आत्मा के द्वारा निर्देशित किया गया. Hallelujah. आमीन. That is the God we love and serve. और वही ऐसा वो परमेश्वर जिसे हम प्रेम करते हैं. But those things we'll hear when we are spending time with Him. और वो जो बातें जो हम उससे सुनते हैं जब उनके सहभागिता में हम समय बिताते हैं. Not just 1 hour, but whole day. लेकिन एक ही समय, 1 घंटा नहीं, पूरा दिन. While we are doing our work, our studies. और हम जो है उसके पढ़ाई या काम दिन भर क्यों करते हैं? Relationship with Him.
उसके साथ एक रिश्ता बनाना जरूरी है। So, can we go please to Mark also, chapter 12, और इसी मरकुस की 12 अध्याय की ओर क्या हम जा सकते हैं? verse 29 to 31. और 12 और 29 Verse 29 and to 31. What are the most important commandments? Because we have 10 commandments, isn't it? What यहाँ are the पर- most important? यहाँ पर हम जो आज्ञा देखते हैं बहुत महत्वपूर्ण आज्ञा है, लेकिन हम तो 10 आज्ञाओं को जानते हैं। Someone can read in Hindi, please. यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में यह मुख्य है, हे इज़राइल, सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही है, एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से, और अपने सारे प्राण से, और अपनी सारी बुद्धि से, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। Thank you, sister. Yes, the great commandment और सचमुच ये एक महान आज्ञा है। is about relationship, to love. ये प्रेम में जो रिश्ता है इसके संबंध में है। First, to love God सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम करना है, with all our heart, our mind, and strength, without everything. और हमारा संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि से उसे प्रेम करना है। No half, no little bit. Full love. और थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा का पूरा प्रेम करना है। Are we loving God in that way? क्या हम इस तरह परमेश्वर से प्रेम करते हैं? If we can love Him like that, अगर हम उससे इस तरह प्रेम नहीं कर सकते हैं, it's because we realize how much He has loved us first. क्योंकि हम अगर उसको समझते हैं कि वो किस तरह हमसे प्रेम करता है। So He said, the second commandment is similar. और दूसरी आज्ञा जो है वो उसी के जैसी है। It's all about relationship, वो उसके साथ हमारे रिश्ते के संबंध में है। loving our neighbor. हमारे पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। My husband, my children, my neighbor, the people where I work and serve. जो मेरे पति है, बच्चे हैं, मेरे आजू बाजू जो लोग काम करते हैं। But you know, here He said, ask yourself to यहाँ love. कहता है कि अपने आप से आप पूछ लो। But in John, Jesus is going beyond that. जो In John 13, यूहन्ना सुसमाचार 13 अध्याय में वो इसी तरह इससे भी आगे जाने के लिए कहता है। verse 34. 24 पद अगर देखेंगे, 13 अध्याय 24 पद अगर हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है, शिमोन पतरस ने संकेत करके उससे पूछा, उनसे पूछो कि ये किसके विषय में कह रहे हैं। A new commandment, said Jesus. और यीशु मसीह ने एक नई आज्ञा यहाँ पर दी है। What is new in और this commandment? यहाँ एक नई आज्ञा क्या है? To love your neighbor. They knew it. पड़ोसी से प्रेम कर, ये तो वो जानते थे। But before He was telling, no, love as yourself. और इससे पहले कि वो कहता है कि अपने आप से प्रेम करो, But here Jesus is telling you have to love. I have loved you. और वो कहता है कि इस तरह प्रेम करो जैसे मैंने आपसे प्रेम किया। That is beyond. वो इसके परे है, That is greater love. और ये एक महान प्रेम का संदेश है। Because this love will go not only to forgive, but to pray for blessing for that person that have not been good with me. और ये प्रेम सिर्फ प्रेम नहीं रहेगा, सिर्फ क्षमा नहीं, लेकिन उसके आगे भी वो उनके लिए एक आशीष ठहरेगा। This love is not putting limit. This love is giving himself, herself for the people. और ये एक मर्यादित प्रेम नहीं है, लेकिन अपने आप को, अपना सारा कुछ लोगों को देने के संबंध में। And this commandment we will never fulfill if we are not in that relationship with God. अगर हम उनके साथ उस तरह के रिश्ते में नहीं है तो ये आज्ञा हम कभी भी पूरी नहीं कर पाएंगे।
But when Holy Spirit is in us, He will work and work and work and take out everything is not from the Lord. और अगर हम उसमें हैं तो पवित्र आत्मा कार्य करता रहेगा और उस सारी चीजों को निकाल देगा जो प्रभु की हमारे में नहीं है. This perfect love will come and restore. और ये जो है आएगा और आपको बहाली देगा. As sister was sharing the testimony, restoration, reconciliation, revival. और वहां पर बहन जो मेरी जो थी वो पे साक्ष्य दे रही थी, अपने जीवन को फिर से संस्थापित करना है, दोबारा से बहाली आपके जीवन में प्राप्त करनी है. These loves have power to forgive. ये प्रेम में क्षमा करने की शक्ति है. Some of you were here when I shared my testimony last time. पिछले बार जो बहन ने साक्ष्य दी थी, आप में से कुछ लोगों ने सुनी थी. But just in short to say, I was sexual abused when I was around my 3-4 years old. और वो जो बातें उन्होंने साझा की अपने पड़ोसी के साथ. And caused sexual abuse when I was 3 years old. Okay. जब ये 3 साल की थी तो इनके बारे में जो सेक्सुअल अब्यूज हुआ था इसके बारे में बताया था. And that really brought a lot of pain and too much in my heart. और वहां पर जो उन्हें दुख हुआ, जो तकलीफ उनको उन्होंने महसूस की थी. But I really cried out to God and He restored me. और उन्होंने उस समय जो है दुख तकलीफें परमेश्वर से चिल्लाकर रोकर प्रार्थना की थी और परमेश्वर ने उन्हें उसमें से बहाली दी. But He guided me not only to receive restoration, but to pray for restoration for those people who hurt me. लेकिन उस समय परमेश्वर ने चेतना दी कि सिर्फ अपने आप को बहाली नहीं बल्कि उनके बहाली के लिए प्रार्थना कर जिन्होंने इन्हें ताड़ना दी, तकलीफ दी. Even He have led me to be a blessing to their own children of these people. और ये लोग सिर्फ यही नहीं बट उनके बच्चों के लिए भी परमेश्वर ने उन्हें आशीष बनाया. Who can do that? ये कौन कर सकता है? Only Holy Spirit सिर्फ पवित्र आत्मा ये कर सकता है working in our life. अपने जीवन में आपके So जीवन He में wants to restore us. आज वो आपसे बहाली चाहता है. He wants restoration of relationship. वो आपको फिर से एक बार एक रिश्ता बनाना चाहता है. So that the fire in our heart will be a great revival. और ये अपने जीवन में जो अग्नि है यही एक अद्भुत बहाली लेकर आएगी. That love go beyond all things. और वो जो प्रेम है सारी चीजों से परे है. So when people see that going on in God's people, और जब ये चीजें लोग आपके जीवन में देखेंगे it's going to come a great spiritual awakeness in the people that they don't know yet Him personally. और उन लोगों के जीवन में एक अद्भुत जो है कार्य बहुत कुछ अद्भुत चीज वो लेकर आएगा जो हम आम तौर पे नहीं जानते. This year, God wants to do greater things in your family, in your married life, in your work, in your study place. और ये जो जीवन है ये इन लोगों के जीवन में जहाँ काम करते हैं आजू बाजू के जो लोग हैं उनके जीवन में एक उत्तम बहाली लेकर आएगा. But just we have to say, yes, Lord, I want to be restored and I want to be instrument of restoration for many. लेकिन आपको कहना है कि परमेश्वर मुझे जो है बहाली का कार्य में आपका जन बनना है. This has been from the very beginning from Pastor Suha and Sister Kavita, no? Restoration, revival. और ये जो बहाली है, ये जो पुनर्जीवन है, ये भाई सुहास और बहन कविता के जीवन में बहुत पूर्व से देखा गया. That is the beautiful design that God has for all of you to keep moving and extending His kingdom. और परमेश्वर का राज्य बढ़ाते रहने के लिए उनका परमेश्वर का ये महान योजना का भाग है. So when we are in love with Him, जब हम उनके साथ प्रेम में हैं, we are going to fulfill also the Great Commission. वो आपको जो कार्य के लिए नियुक्त किया गया है वो बहुत बड़ा कार्य आप पूरा करने वाले हैं. Can we go to the book of Mark, just 2 chapters after? Mark 16. 16. Yeah. Mark 16. Mark 16, verse 15 to 18. मरकुस से समाचार 16 अध्याय 15 से 18 पद हम पढ़ेंगे. तब उनसे कहा, समस्त संसार में जाओ और प्रत्येक प्राणी को मेरा शुभ संदेश सुनाओ. जो व्यक्ति विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होगा. परंतु जो व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहरेगा. विश्वास करने वाले लोगों को सामर्थ प्राप्त होगी और वे यह चिन्ह दिखाएंगे. वे नाम से भूतों को निकालेंगे,
नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को हाथ से उठा लेंगे और यदि विषपान भी कर ले उन्हें कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार स्वस्थ हो जाएंगे। Amen. So Jesus said, this is the Great Commission. और यीशु मसीह ने कहा कि आपके लिए नियुक्त किया गया बड़ा कार्य, This is the mission for everyone here. और आपके लिए एक नियुक्त किया गया हर जगह के लिए कार्य। As Auntie was sharing, no? She was sharing how to reach out, not to a Muslim. और आंटी वहां पे बता रही थी कि मुस्लिमों के पास किस तरह हमें पहुंचना। The world is crying. Sorry. The world is crying उनका for जो जहान love. है, उनकी जो दुनिया है, वो प्रेम के लिए रो रही। And that love only can come from God. और वो जो चाहते हैं वो प्रेम सिर्फ परमेश्वर से आ सकता है, Through Jesus Christ, यीशु मसीह के द्वारा आ सकता है, who died, जिसने जो हमारे लिए who मरा, rose again, वो फिर से दोबारा who is जीवित है, coming back. वो दोबारा आने वाला है। But now we are the ambassador of Jesus to a spirit that smell that Pastor Suha was speaking. और हम उसी के बारे में देख रहे हैं जो विश्वास कह रहे थे। Through the way we speak to the people, through the way that we answer, we do to the people, they will know who is God. और हम जिस तरह लोगों से बातें करें या जिस तरह से उन्हें समझे, जिस तरह उनसे समझे, जिस तरह बर्ताव करें, उसके द्वारा ही ये जीवन, इस प्रेम को वो समझ सकते हैं। It's not only for our relative, it's not only for our society, this good news. ये सुसमाचार सिर्फ हमारे सोसाइटी के लिए, सिर्फ हमारे रिश्तेदारों के लिए नहीं है, But we can pray for whole India, we can pray for all the countries around us. लेकिन हम भारत के लिए, सारे संसार के सारे राष्ट्रों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। I say to you, more than 40 countries have come to our bakery, just here to India, and there are more. और बहन ने कहा कि सिर्फ एक देश नहीं लेकिन पूरे 40 देशों से लोग यहाँ हैं, तो यहाँ तो भारत है। It's not about us, it's about Him. ये हमारे बारे में नहीं, उसके बारे में। I don't speak good English, very little Hindi. और तो इनको हिंदी थोड़ी आती है और बहुत अच्छा इंग्लिश तो नहीं जानते हैं, But we have our heart in fire for Him. लेकिन परमेश्वर को उस सेवा कार्य के लिए So we हृदय में अग्नि, believe He can do. और हमारे द्वारा वो कार्य कर सकता है। So you can do it. आप भी कर सकते हैं। Whatever is your position or role, you can do it. आपका वहाँ पे कोई भी रोल हो, आपका कोई भी पोजीशन हो, आप उसे कर सकते हो। In that relationship with God, we परमेश्वर को रिश्ते के द्वारा can also हम भी वो कार्य कर सकते fulfill the desire of His heart. हैं। उसके हृदय की इच्छाएं है, उसको पूर्ण कर सकते हैं। Very short, I want you to invite Rosie, and she will share a little bit how the Lord has been speaking to her about this. हम इस बहन को बुलाएंगे जो बहुत संकल्प में अपने साक्ष्य को बताएंगे। Rosie, she is from Mexico. ये बहन मेक्सिको से है, So how she reached here? और यहाँ पर किस तरह पहुंची वो बताएंगी। सबका मसीह की so blessed to be here. परमेश्वर ने आशीषित किया कि बहन यहाँ आ सकी। I just want to share. I'm trying to do it small, also not so long. जो साक्ष्य बहन देना चाहती है वो बहुत संकल्प देना चाहती है। And to connect this with my sister Maria was sharing with you. और बहन मरिया जो बोल रही है उससे उस साक्ष्य को जोड़ना चाहती है। I just want to tell you, even some sisters were sharing also like the importance. Pastor was praying also the importance to renounce to ourselves. और जो पास्टर वो बोल रहे थे, जो बहनें साक्ष्य दे रहे थे, उसमें क्या महत्व हमारे बारे में है वो बोलना चाहती है। To surrender our own plans to His perfect plan. हमारे जो योजना है उसको हम उसमें समर्पित करें क्योंकि उसकी योजनाएं परिपूर्ण है। And all this is coming also through your relationship with Him. और ये उसके जरिए आता है कि आपका उसके साथ किस तरह रिश्ता है। Everything in a Christian life is only Christ. ईसाई जीवन में जो भी कुछ है वो सिर्फ यीशु मसीह है। And I want that we can read in the Bible John 17.
और यूहन्ना सुसमाचार 17 में इसके बारे में हम पढ़ते हैं। 17 verse 3. 17 में 3 पद अगर हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, शाश्वत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने तुझे भेजा है स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें। Yeah, if somebody can read it. Hindi, please. हिंदी है, रेड इंग्लिश में। You read already? Okay. और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। Then how this word Jesus Christ says, ये यीशु मसीह के कहे गए शब्द हैं। and in resume he was telling like the eternal life is to know him, to know the Lord. और वो अंत में कहता है कि शाश्वत जीवन उसका है कि जो उसे जानना है, The only true God वो सिर्फ परमेश्वर के द्वारा है and Jesus Christ, और यीशु मसीह के द्वारा, whom have you sent. और जिसके द्वारा वो कहा। Means everything is around him. सॉरी, Everything is only to him हाँ, and from him. जो भी कुछ है वो उसी से, उसके बारे में है और उसी के आसपास है। When we understand these, brothers and sisters, और ये भाई बहन को अगर हम इन बातों में समझ सकते हैं, so we are going to understand what is the purpose of our life. और फिर हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, इसको हम समझ सकते हैं। You are here to know him. आप यहाँ पर आए हैं उससे जानने के लिए, And once you know him, you need to make all people know him also. और जब आप उसे जानोगे तो आप बाकी लोगों को भी उसे जानने में मदद कर पाओगे। So the Lord is going to use your life in everywhere that you are with और- this और objective. उसके द्वारा प्रभु जो है आपके जीवन को इस्तेमाल कर रहा है जहाँ जहाँ आप उस सेवकाई में जाते हो। Everywhere in your work, in your duties of every day, if you are studying, if you are working, you are alive to share about the Lord. और जहाँ भी आप जाते हो, आप जहाँ कार्य करते हो, जाना है, आपको यही होगा कि आप उसका शब्द बांटते रहो। And many times we have our own plan how to do it. कई बार हमारे अपनी योजना रहती है कि चीजों को किस तरह से करना है। As what like our sister was telling, we don't have the plan to start a bakery and coffee shop. और बहन बता रही थी कि वो किस तरह उन्होंने योजना बनाई वो कॉफी शॉप के बारे में। At the same time, I was planning different plan for my life. और उसी समय वो अपने जीवन में बहन कुछ अलग योजनाएं बना रही थी। A long time ago, I didn't have even in my thoughts to come to India. और बहुत समय से ऐसा उनके मनों में यू हैड प्लान टू कम टू इंडिया, Don't have. तो उनके मन में कभी भी भारत आने की कोई योजना नहीं थी। And when the Lord told me to come, I say no because this is not my plan, Lord. और प्रभु ने जब उनसे कहा तो इन्होंने कहा परमेश्वर से कि ये मेरी योजना नहीं है परमेश्वर। But you know, when you started to obey, the Lord opened the door for you. और जब आप उसकी आज्ञा पालन करते हो तो आपके लिए द्वार खुलता है। So when I decided to obey, the Lord opened the door. और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा पालन करने का सोचा। And I was planning to come to Delhi and even to stay in Dehradun. और वहां उसके बाद उनका दिल्ली और देहरादून के एरिया में आने का योजना था। But the Lord told me, no, you need to go to Manali. मनाली, Yeah, mountains. मनाली। तो परमेश्वर ने कहा नहीं, आपको मनाली जाना है। And I said again, Lord, but that is not my plan. लेकिन इन्होंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मेरी योजना तो ये नहीं है। So the doors were closed. Like, okay, then if you are going to do on your way. तो परमेश्वर ने अनुमति दी कि जो आपको अपनी इच्छा से करना है आप कीजिए। Nothing happened. और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। So I say, okay, Lord, I will obey. When you want to me, I do. तो उन्होंने प्रभु से कहा कि ठीक है प्रभु, जो आप चाहते हैं उसके अनुसार मैं करूंगी। Then the door opened and everything the Lord provides. और उसके बाद द्वार खुला और जो प्रभु की इच्छा थी उसके द्वारा सब कुछ वैसे हुआ। So it works like this. और परमेश्वर इस तरह कार्य करता है। When we surrender our plans to His plan, जब हम अपनी योजनाओं को उसकी योजना में शामिल करते हैं, उसकी योजना में शरण आते हैं, He will fulfill the plan for your life. वो अपनी योजनाओं को आपके जीवन में परिपूर्ण करेगा। Because He already designed our lives. He already has a special purpose
for each one of us. उसने आपके जीवन को सोच रखा है और आपके जीवन के लिए उसके पास एक विशेष योजना है। And everything is going to be to fulfill His perfect purpose. और सारा कुछ जो है उसके सही ऐसे उद्देश्य में पूर्ण होना है। So we need to find, Lord, where do you want me to go? What do you want me to do? तो हमें इस बात का शोध लेना है कि प्रभु आप क्या चाहते हैं, मुझसे आप करना चाहते हैं, And surrender everything to Him. और सारा कुछ उसमें शरण दे। And He will take you even in places that you don't know. और वो ऐसे ऐसे स्थलों पर आपको लेकर जाएगा जो आप नहीं जानते, And to reach people that even you cannot imagine before. और उन लोगों को आप मिलोगे जो आपने सोचा नहीं है कभी। That was our sister sharing. People is coming to the coffee shop and people that we never expected even to reach. और वहां पर जो है, जो कॉफी शॉप के बारे में उन्होंने बोला, इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था वहां पे पहुंचने का। Many people, owner of companies, owner even people from Bollywood is coming to this coffee shop. और बहुत सारे लोग हो सकता है कंपनी के हो या बहुत सारे लोग हो उस कॉफी शॉप में आते थे। We don't have the opportunity to go and share to them, but they are coming here so we can share to them. ये लोग संभव थे, उनके पास पहुंचने के लिए हमारे पास कोई जरिया नहीं था, लेकिन वो लोग यहाँ पर आए कि ये सुन सके। So we realize this is His plan, not our plan. और वो उसके योजना के अनुसार, न हमारी योजना के अनुसार नहीं। I just want to share this with you and encourage you, brothers and sisters, to be sensitive to His word. और हमें आपसे ये संदेश देना था और आप उसके शब्दों के प्रति गंभीर सतर्क रहिए। And every morning, surrender your plan to His perfect plan. और रोज प्रातः अपनी योजना उसके पास रखो। Thank you, brother. Thank you, Pastor. And all these things will happen if we are in relationship with Him, और ये- spending time with Him. और ये सारी बातें तब होगी जब आपका उसके साथ रिश्ता होगा, आप उसमें समय बिताएंगे। So now, what I want to invite, और हमें इन बात को आमंत्रित करना है, can we come to God's altar, to His feet, क्या हम परमेश्वर के इस वेदी पर आ सकते हैं उससे बातें करने के लिए, and to say that, oh Lord, that is my desire. I want to know You more and more. आप ये कहें, ये ढूंढे कि परमेश्वर मैं आपको और ज्यादा जानना चाहता हूँ, I want really to be with You all day long. और कि मैं आपके साथ दिन भर आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। If some of you not yet have received the Lord in your heart as your personal God and Savior, और जब भी हर बार आप अपने परमेश्वर से, प्रभु से अपने, this is the time ये समय है, you can tell to the Lord. सॉरी, So now you can pray and say, forgive me, Lord, I have been far away from You. आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैं आपसे बहुत दूर रहा अब तक। I acknowledge that You are God, that You gave Your life for me. और इस बात का मुझे नहीं था कि आपने मेरे लिए अपना जीवन दिया है। Come to my life. मेरे जीवन में प्रभु आप Be आइए, my God, be my Savior. आप मेरे जो है बचाने वाले रक्षक बनो, Come, आप मेरे जीवन में आइए। I receive in my life. आप अपने जीवन को, आप कहो कि मेरे जीवन को स्वीकार कर, I want to know You, मैं आपको जानना चाहता हूँ, love You आपसे मैं प्रेम करता all हूँ, the days of my life. बचे हुए मेरे जीवन, जिंदगी के जीवन में। And this is going to give you the right to call God Father. सॉरी, And this gives you the right to call God Father. और परमेश्वर की आपके लिए जो बुलाहट है उसके बारे में वो आपको पहुंचाने वाला है। But now, और if अब you have received already Jesus, यीशु मसीह को आप स्वीकार कर चुके हो, you want this year to go forward in your relationship of love with God. कि किस तरह परमेश्वर के साथ रिश्ते में आप आगे बढ़ोगे, You want to know and love Him more. आपको और उसे और जानना है। So we can just surrender to Him. If you want to come here to the altar or in the where you are, then you can come to the Lord in prayer. और जिस तरह इस वेदी पर आपने उसको पाया है, उसको आप उसके साथ में रहिए। So now together we can pray. और आप प्रार्थना करें, Come as you are.
जैसे भी आप हो परमेश्वर। If you want to come to the altar, if you want to be your bread, come. We will surrender our life to you. अगर अपने जीवन को आप प्रभु को देना चाहते हो तो आप उठ के यहाँ आगे आ सकते हो। Amen. जो भी आप परमेश्वर को अपना जीवन देना चाहता है, बहन कह रहे हैं कि आप उठकर आगे आ सकते हो, आल्टर पे आ सकते हो, उठ के आगे आ सकते हो, घुटनों पे बैठ सकते हो यहाँ पर। Just pour out your heart to God. और यहाँ बैठ के अपने हृदय को आप परमेश्वर के चरणों में आप उंडेल दो। As this psalm was telling us, the dear come, आप कहिए कि मेरे प्रिय परमेश्वर, crying out for water. और आश्चर्य कर्मों के आप अपने हृदय से प्रार्थना कीजिए, रोइए आप परमेश्वर के सम्मुख। Like that, I want to be more and more hungry and thirsty of Jesus, of Holy Spirit. आप कहिए कि परमेश्वर जो है, मैं आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा भूख का प्यासा रहना चाहता हूँ, आपकी उपस्थिति में आना चाहता हूँ। Let's cry out to Him. परमेश्वर के उपस्थिति के लिए आप रोइए। Yes, Lord, and forgive us, Lord, for how much long we have been just being far away. आप कहिए कि परमेश्वर अब तक मैं आपसे बहुत दूर था। Forgive me, Lord, for not loving you with all my heart, strength, and mind. और जो भी परमेश्वर मेरा हृदय है, Take your place in my life, Lord. और जो कुछ मेरा है आप ले लो परमेश्वर। Holy Spirit, bring me again and again. और पवित्र आत्मा मुझे आप दोबारा बार बार जो है सचेत रखिए। Break my pride and selfishness. Break my pride, my selfishness. Break, oh Lord, my laziness. Break, oh Lord, any sin that is in me that is blocking me to reach, oh Lord, the highest. परमेश्वर मेरे अंदर जो भी आलसपन है, जो भी बातें मेरे आपके अनुरूप नहीं है, उसे निकाल दीजिए। उसके लिए प्रार्थना कीजिए आप। Holy Spirit, go deep down in me. पवित्र आत्मा मेरे अंदर गहराई में आइए। Search my mind, search my heart, Lord. मेरे हृदय को, मेरे मन को शांत कीजिए, स्थिर कीजिए। Search my motivations. मेरा आपके साथ रिश्ता सही कीजिए। I surrender to you, O Lord. मैं अपने आप को आपके शरण देता हूँ परमेश्वर। Forgive me, Lord. मुझे क्षमा कीजिए परमेश्वर। Restore me, Lord. मुझे दोबारा बहाली कीजिए परमेश्वर। Heal me, Lord. मुझे चंगाई दीजिए परमेश्वर। I need you. I need you, Lord. मैं आपकी मुझे जरूरत है परमेश्वर। I प्रभु need you. प्रभु आपकी मुझे जरूरत है प्रभु। हालेलुया। Fulfill, Lord, your desire, your purpose in my life. परमेश्वर मैं मेरे जीवन को आप में समर्पित करता हूँ। Do as you wish, O Lord. Do as you have planned in me, O Lord. आपकी मेरे जीवन में जो योजनाएं हैं वो मुझे पूरा करने को दीजिए। Restore me, Lord. Heal me. मुझे चंगाई दीजिए परमेश्वर। Restore the broken relationship in my life. मेरे जीवन में जो टूटे हुए रिश्ते हैं उसको दोबारा बहाली दीजिए परमेश्वर। Yes, Lord, renew my life. परमेश्वर आप मेरे जीवन को जानते हो। Transform my life, O Lord. परमेश्वर आप मेरे जीवन को जानते हो। Make me more and more like Jesus, Lord. यीशु मसीह के अनुरूप मुझे ज्यादा से ज्यादा बनाइए। Father, I need you, Lord. परमेश्वर मैं आपको चाहता हूँ, आप मैं पसंद करता हूँ। Revive me, O Lord. फिर से मुझे आप पुनर्जीवित कीजिए परमेश्वर। Revive me, O Lord. मुझे फिर से आपके पुनर्जीवित कीजिए परमेश्वर। Revive my family, my married life, O Lord. जीतमान परमेश्वर मेरे जीवन को आप दोबारा बहाली दीजिए। Restore, O Lord, my communion with the brothers and sisters. मेरे भाई बहनों के साथ मेरा रिश्ता जो है दोबारा बहाल कीजिए। Oh, Father, open my eyes, my ears to you. मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे आंखें, मेरे कान जो है आपकी ओर खोलिए। Light the fire in my heart for you, O Lord. मेरे जीवन में हृदय में आपके लिए अग्नि आए।
Do your will, O Lord. Do your will, O Lord. आपकी इच्छा के अनुरूप हो परमेश्वर, आपकी इच्छा के अनुरूप ही हो। And may I overflow with this love so people will come to you, O Lord. और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर ये इतने सारे लोग आपके पास आएंगे। Yes, Lord, I pray for a great revival, O Lord. और फिर से एक बार बहाली के लिए प्रार्थना करते हैं, For your glory, O Lord. केवल आपके गौरव के लिए For the परमेश्वर। little ones, for the children. A great revival in the little children. परमेश्वर आपके A great revival in the youth and the married couple. एक उत्तम संजीवन जीवन में आने के लिए प्रार्थना करते A great revival in your people who are old, O Lord. हैं। प्रभु आपके लोगों के बीच में एक उत्तम संजीवन आय करके प्रार्थना करते A spiritual awakeness for your glory. हैं। और जो है सही परमेश्वर के गौरव के लिए होने के लिए Thank you, Lord. थैंक यू परमेश्वर। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. As you have dedicated your life to serve. जैसे आपने अपने जीवन का प्रभु में समर्पित किया है, As last Sunday I told, और जिस David Livingstone came from a European country in Africa. और जिस तरह पिछले सप्ताह पास ने बताया कि लिविंगस्टन जो अफ्रीका में आए थे, He lost his wife, his children, with his funeral by himself to his wife and children. उन्होंने अपने बच्चों को, पत्नी को खोया और अपने हाथों से उसका फ्यूनरल किया। And we can see Africa is revived. और इसके द्वारा अफ्रीका का In पुनर्जीवन the आप same देखते way, women of God came from Bolivia and Mexico in India, and they are staying in the mountains and Himachal and different places. और ये बहनें जो है वो बोलिविया से आए, अलग अलग देशों से They आए, doesn't know Hindi, they doesn't know English, the God is using them, and the lives have been changed and transformed. उनको हिंदी नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर भाषा न आते हुए भी उन्होंने अनेकों का जीवन बदला। Today, as you have dedicated your life, go out and serve the Lord and win souls for the kingdom of God. जिस तरह आप इस संदेश को सुना, आप बाहर जाके परमेश्वर के राज्य को सुसमाचार के कार्य के लिए समय दीजिए। Vanity. मंडली, ये सारा कुछ जो संसार में है वो व्यर्थ है, व्यर्थ है, Everything is vanity. सब कुछ व्यर्थ है। But the calling alive to serve. परमेश्वर को सेवा करना, ये जो आपके जीवन पर बुला I है, have come to a foreign land to serve the Lord, and you can see souls are added in the kingdom of God. और आप यहाँ पर ये जो है बाहर देश से आए हैं, यहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य में अनेक आत्माओं का सम्मिलित People of करना। God, if God has called you, your job, in 1 second God will remove your job. In 1 second your finances will be disturbed. But the souls what God is giving you, those souls, He is going to ask you, where these souls are there, God, whether in hell or whether in my presence. जो नौकरी आपको है परमेश्वर तुरंत निकाल सकता है। जो आत्माएं परमेश्वर दी, वो पूछेगा आपको कि ये जो सब आत्माएं मैंने दी थी उसके बारे में आपने क्या किया। Give your youth to Jesus. मंडली, अपना युवावस्था परमेश्वर को दो। तुम्ही तुमचं तरुणपण येशूला द्या, त्याची सेवा करण्यासाठी. आपका युवावस्था जो है प्रभु को दो। आणि तो तुम्हाला स्पर्श करत आहे. He will touch you. You must have taken decision that you will serve the Lord. आपने हो सकता है निर्णय लिया होगा कि आप उसकी सेवा But you करोगे, are not serving the Lord. लेकिन आप उसकी सेवा नहीं करोगे। Today is a call from the Lord. आज आपके लिए फिर से बुलाहट, Today is a call from the Lord. आज प्रभु से बुलाहट है। The Lord is telling my daughter, my son, वो कह रहे मेरे बेटे, मेरी बेटी, you have decided, you have made a covenant that I will serve you. आपने एक बार सोचा था, निर्णय लिया था कि आप मेरी The सेवा करो, situation, the circumstances are not allowing. लेकिन आपकी परिस्थिति उसे अनुमति But नहीं दे if you रही। dedicate today, I will use you, my daughter, my son. अगर आज इस बात को आप समर्पित करते हो तो ये बातें माझी फिर मुली तर तुला इच्छा असेल माझी सेवा करण्यासाठी मी तुला निवडलेलं आहे आणि तू आज त्यासाठी समर्पण कर. All these things are vanity. हे सर्व व्यर्थ आहे. जो भी कुछ है सारा व्यर्थ है। माइक थोड़ा दूर पकड़ना। परंतु परमेश्वर म्हणत आहे की माझे लोक नरकामध्ये मरत आहे. The Lord is telling my people are dying in hell. परमेश्वर कह रहे हैं मेरे लोग नरक में मर रहे हैं। Are you ready to
क्या go and share the good news there? क्या आप वहां पर जाकर के सुसमाचार देने के Are लिए you तैयार हैं? ready, available to share my love or for that? क्या आप मेरा प्रेम जो है वहां बांटने के लिए Or तैयार do हैं? you want your husband and wife with you? आपको आपके पति Or you पत्नी want your आपके children to be with you? क्या आपकी इच्छा है कि आपके Or बच्चे you आपके want साथ हैं? the world with you? क्या आपका संसार आपके साथ आप चाहते हैं? But the Lord is calling you, my son, my daughter. मेरे बेटे बेटी, आज प्रभु आपको बुला रहा है। He is a covenant keeping God. वो करार रखने वाला परमेश्वर है। All will go away. सब कुछ दूर चला जाएगा। But if you are going to invest in my kingdom, प्रभु कहता अगर मेरे राज्य में आप उसको अगर then अर्जित you करो will be well from eternity to eternity. जो हमेशा से हमेशा तक टिकेगा। Don't avoid my presence, the Lord is telling. मेरे उपस्थिति को आप नकारो मत। मेरा सानिध्य सोडून तुम्ही जाऊ नका. परमेश्वर कहता मेरा सानिध्य छोड़कर आप जर मत तुम्ही जाइए। माझं सानिध्य सोडलं तर मी तुम्हाला सोडून देणार हा परमेश्वर आहे. गॉड से इफ यू लीव माई प्रेजेंस आई विल लीव यू। मी तुम्हाला सोडून देणार आई विल लीव यू गॉड सेज कारण तुम्ही मला सोडत आहे. बिकॉज गॉड सेज यू आर मी लिविंग मी। तुम्हाला सोडलं तर तुमचा दुसरा पाऊल नरकामध्ये असणार आहे. गॉड सेज इफ यू लीव मी योर नेक्स्ट स्टेप विल बी इन द हेल। त्यात अग्नीमध्ये किडा मरणार नाही की आग उचलणार नाही. और and such a fire where a worm won't die and fire won't quench. नरकातला मी तुम्हाला विचारणार आहे. मी तुम्हाला बोलवलं पण तुम्ही काय Every soul who is in the hell, he will be answerable for that. ओ रिबाना शांताबा खीरा भविष्य रिबाना शांताबा खीरा भविष्य रिबा शबारा खीरा भविष्य. The Holy Spirit presence is working there. पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ कार्य कर रही है। As few people have dedicated their lives, जो लोगों ने अपने जीवन प्रभु को दिया if है। you're in a house, सॉरी, wherever you, if you're online in your house, आप जहाँ पर भी हो, आप घरों में हो, kneel down there in your presence and tell Jesus, God, I don't want anybody in this world, but I want you, Jesus. आप जहाँ भी हो अपने घुटने पर आइए, चाहे आप घर में हो, कहे प्रभु मैं अपना जीवन आपको देता हूँ, मुझे Come आपकी in सेवा my कुछ heart, नहीं I चाहिए। want to serve you, Lord. मेरे हृदय में चाहता हूँ कि मैं आपकी सेवा Come करूँ। in my heart, I want to serve you, Lord. मेरे हृदय में आइए कि आपकी सेवा God, I करूँ। don't want the worldly things, oh Lord. मुझे संसार संबंधी चीजें नहीं I चाहिए। don't want my husband, my wife. मेरे पति पत्नी I मुझे नहीं don't want चाहिए, my children. मेरे बच्चे नहीं But चाहिए। I want you to God give you first importance. मुझे आपको सबसे पहला महत्व देना है, First place I want to give you. पहला स्थान आपको देना है। Hallelujah. Rima shaka barakira baushaka. Amen. Rimana shanda bakira baushikebe. You have to stand alone at the time of the judgment of God. न्याय के दिवस पर आपको अकेले ही खड़ा रहना है। Your spouse will not come. आपकी पत्नी नहीं, पति पत्नी नहीं Your आएंगे, children will not come. बच्चे नहीं आएंगे, Your parents will not माता come. पिता नहीं आएंगे, Your friends will not come. मित्रगण नहीं Your आएंगे, relatives will not come. आपके रिश्तेदार नहीं आएंगे। Only you have to stand and answer the King of the King and the Lord of the Lord. आपको जवाब देना है, प्रभु के प्रभु, राजा के राजा। First question he will ask you, how many souls you have won for me? सबसे पहले पूछेगा मेरे लिए आपने कितनी What you आत्माएं have दी? done for me? आपने मेरे लिए क्या किया? As I sacrificed the holy place of heaven and came down आपके and लिए- took born in the manger. आपके लिए मैं स्वर्गराज छोड़ के आया था, उस चरणी में मैंने जन्म लिया, And the dirty place I have taken the birth. उस गंदी जगह पर मैंने जन्म लिया। My son, my daughter, what मे- you have sacrificed. मेरे बेटे मेरे बेटी, आपने मेरे लिए क्या What you त्याग have किया? sacrificed for my souls which are in hell. जो नरक में उनके लिए आप क्या त्याग किया है? As the sister told, the place you don't know, he's going to take you. वो कह रहे कि बहन ने कहा कि जो जगह आपको पता नहीं वहां आपको As लेकर जाने Abraham वाला did है। not know the place, he took him there and he blessed him with all the heavenly blessings. और जहां वो जानते नहीं थे वहां पर उनको लेकर सारी आशीषें उन्हें My दी। sister is staying in Himachal Pradesh, unknown place. The people are coming there and she's been blessed there. और वहां पर अज्ञात जगह पर हिमाचल प्रदेश में रहते हुए लोग आके के आशीष पा रहे हैं। Today God is wanting to take you to a foreign place. परमेश्वर आज आपको अलग अद्भुत जगह में लेकर And जाना you don't know anybody there. जहां आप किसी को नहीं जानते। Be ready and tell God, yes Lord, I am ready Lord. तैयार है, कहीं कि हाँ परमेश्वर मैं आपके लिए तैयार हूँ। Today's service is to offer your body as a living sacrifice for the Jesus who is the King of the King and the Lord of the life. आज ये रविवार की सभा आपको जीवित बलिदान देने के लिए है।
Be ready to serve Him. उसकी सेवा के लिए तैयार Be होइए, ready to serve Him. उसकी सेवा के लिए तैयार होइए। Sitting in your house, आपके घरों में बैठ के, sitting in your house, घरों में बैठ के you cannot serve Him. उसके लिए सेवा नहीं कर पाओगे। You will be more sick. आप और बीमार हो जाओगे, More problems will be there. और समस्या More आएगी, situation will be there. और परिस्थिति आएगी। But die, go and die on the road. If you are dying, you will be martyr for Jesus. आप यीशु मसीह के लिए रास्ते पर मरना चाहते हो, उसके लिए आप मृत्युंजय By हो। serving the Lord, if you die, मेरे बेटे, अगर आप मरोगे, परमेश्वर की सेवा करते करते अगर मर जाएगी तो आप सेवा करते समय मर जाओगे, तुम्ही मेला तर तुम्ही त्याच्यासाठी रक्त साक्ष होणार. उसके लिए येशूने रक्त साक्ष देऊन तुम्हाला आणि मला त्याला विकत घेतलेला आहे. God has given His blood witness and purchased you all. Are you ready to die for me? क्या आप उसके लिए मरने के लिए तैयार हैं? Hallelujah. We gonna shakara Lord Jesus. If among you, if God is telling you, अगर आप में से किसी को परमेश्वर कह रहा है, the entire church in your hand, in the hands of the Lord. और ये सारा कलीसिया प्रभु के हाथ And you में, online also. जो भी ऑनलाइन होगा उनके लिए भी, And if God is telling you to pray shortly, अगर and परमेश्वर surrender and close this meeting with the word of prayer. अगर कोई ऑनलाइन भी हो, अगर प्रभु आपको चेतावनी दे रहा है कि आप God has प्रार्थना, spoken with you with this message and the prophecy what came to you today morning. परमेश्वर अगर आपको प्रार्थना के लिए चेतावनी दे, प्रार्थना कीजिए। अगर परमेश्वर ने आपको इस प्रार्थना अगर चेतावनी दी है, And surrender the entire church and the body of Christ so that all the church members will be the missionary to the kingdom of God. और इस सारे कलसिया जो है प्रभु के हाथ में सेवा करने के लिए देते हैं। आने समय में वो प्रभु के सेवा करने के लिए सारा मंडली जो है Pray वो आज से shortly कार्य करते हैं। and close this meeting with the word of prayer. और अगर प्रभु आपको चेतावनी देता है तो छोटी सी Whether it is प्रार्थना कर। online, whether it is you are sitting here in the presence of the Lord. आप में से कोई ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कोई भी हो, परमेश्वर अगर आपको चेतावनी देता है तो आप प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त कीजिए। हम सभी से कहते हैं। Hallelujah. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद मेरे पिता। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। खुदावंद सच में प्रभु जी, आज आपको जानने का मौका फिर से एक बार आपने हमें दिया प्रभु जी। प्रभु बारंबार आप प्रभु अपने दासों के द्वारा प्रभु जी हमें प्रभु जी चेतावनी देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर इस 2024 में प्रभु परमेश्वर हम अपने आप को आपके सम्मुख समर्पित करते हैं मेरे खुदावंद, ताकि परमेश्वर हम आपको जान सके और जो आज्ञा आपने दी है प्रभु जी उसको पूर्ण कर सके मेरे खुदावंद। आप हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु जी, हमें सहायता और मदद कीजिए मेरे पिता, ताकि परमेश्वर जो लोग जो भाई बहन प्रभु परमेश्वर इस जहां में है प्रभु परमेश्वर इस संसार में है प्रभु जी, वो प्रभु जी जीवती खुदावन को नहीं जान रहे प्रभु जी। प्रभु उन तक पहुंचने के लिए प्रभु आप हमारी अगुवाई कीजिए पिता, ताकि प्रभु हम वहां तक पहुंचे प्रभु जी। और प्रभु परमेश्वर वो अनंत काल का जीवन जिसमें हम सच्चे खुदावन को जान सके प्रभु, ऐसा होने दीजिए पिता। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देती हूँ